prior, do you have any prior idea on PLC automation also? No, sir. Okay. Are you a working professional or a fresher? Working, sir. Working. Okay. How much experience you are having? Almost 4 years, sir. 4 years in instrumentation field. No, electrical, basically electrical. Recently, I joined a company where there is instrumentation is required. Okay. I'm trying to learn my PLC and SCADA a little bit, sir. Okay, good. So you were having 4.5 years experience in electrical, is that it? Yes, sir. Mainly in project background, sir. Okay. So right now you are working In FMCG company, sir. in FMCG. Yes, sir. Recently joined 10 to 15 days. There I have seen mainly there is automation. So I joined it. Okay. Okay, not an issue. It will be covered. Khalid is there. Okay. So, Sumit, exactly, you should go through the videos also that we have already covered, and Yes. all the videos are in your batch, PLC for professionals. You can go through those from lecture 1, and you will have that idea that how PLC is working and how you need to write a ladder logic and all. Okay. We have already covered something, and we will be covering in coming days also. So if you find any difficulty, you can talk to me, not an issue. Okay. So Yes. just whenever you are getting some time, you go through the videos and clear your concepts and all. Okay. So Okay, sir. you are a BTech or diploma? BTech, sir. BTech. Then fine. You can understand it very easily. Just go through the videos from lecture 1. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you. So today we will be introducing SCADA. Okay. So we'll be introducing SCADA. Already we have completed some part of PLC and PLC programming. So I will be covering once again, just to go through the videos once. Okay. Not an Okay, issue. sir. And how about Khalid? How are you doing? Good, sir. Good. I'm good. Okay. So today I am going to introduce you SCADA. Do you know what is SCADA? Any idea regarding SCADA? What it is exactly? Do you have any? Geographically distributed system. Geographically distributed system. No. Anything else? What is the full form of SCADA? Supervisory control and data acquisition system. So that's what SCADA. Anyways, I'm showing you. So can you see the, okay, I should turn off my video. Is the recording in progress? Yeah. Okay. So this is your SCADA. Can you see the screen? Yes, sir. SCADA means what? SCADA means supervisory control and data acquisition. Okay. So here you can see that we are having a screen where there is written as boiler or turbine or turbovisory system, alarm summary, alarm history. Is that it? Ash handling. So these are the graphical pages that we have designed in SCADA. And we can see there are numbers of parameters that we can see here. There are some, if you see in the below, there is some ID fan and FT fan and etc. Isn't it?
I hope you are able to see this. Yes, sir. Okay. So see, this is SCADA. SCADA means supervisory control and data acquisitions. Why it is called supervisory control? Why SCADA is called supervisory control? Anybody? Supervisory control. So See, because it is supervised by a single person no. remotely. Exactly. Our main control is done by PLC or some control system like DCS. Is not it? So this is what you are doing. You are controlling all your equipments from PLC or DCS or some other sorts of controllers. So there are controllers. Those controllers work perfectly. If you program them, suppose there is a PLC and you have written some logic and you have downloaded and you put in run mode, then the PLC will work perfectly, not an issue. But if you want to see that what is going on inside the PLC, or if you want to give some command to the PLC during the process, then how you will be talking with the PLC? So we need some tools. We need some tools to talk to PLC or any other controllers. We need some tools to talk to PLC or any other controllers. And one of such tool is your SCADA, supervisory control and data acquisition. What are the other tools? Like we call human machine interfacing. We call them human machine interfacing. Did you ever heard that human machine interfacing? Yes, sir. HMI. Yes, sir. So it is called your HMI, human machine interfacing. क्या हो गया इसको? HMI means human machine interfacing. Can anybody tell me what is the difference between SCADA and your HMI? SCADA और HMI में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? SCADA में सर नंबर ऑफ पीएलसी टेक करते हैं और HMI में सिर्फ एक ही पीएलसी का रहता है, इंडिविजुअल रहता है. So HMI has some limitations. HMI एक कॉम्पैक्ट डिवाइस आता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप प्रोग्राम डाल सकते हो और जिसको कम्युनिकेट करा सकते हो किसके साथ, पीएलसी या फिर एनी अदर सॉर्ट ऑफ कंट्रोलर्स. किसी भी टाइप का डिजिटल कंट्रोलर हो उसके साथ आप HMI को कम्युनिकेट करा सकते हो अगर दोनों का प्रोटोकॉल मैच कर जाए तो आप एक पर्टिकुलर HMI हजारों PLC के साथ बात कर सकता है. इट कैन टेक द डाटा, इट कैन गिव, यू कैन गिव कमांड फ्रॉम HMI टू PLC. अभी PLC को कमांड देने का मतलब क्या है, कि हम क्या बोलना चाहते हैं कि सर PLC को कमांड देंगे. पकड़ लो, आपका यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है CEP पंप दिख रहा है, कॉन्डेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप. इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं, whenever I am clicking, तो एक पॉपअप आ रहा है. इसको क्या बोलते हैं, पॉपअप बोलते हैं, है ना. डू यू नो दैट? जब भी मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ CEP पे तो एक पॉपअप आ रहा है, CEP1. तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, स्टार्टिंग इंटरलॉक्स, रिमोट मोड, ऑटो मोड, इस टाइप से बहुत कुछ लिखा हुआ है ना.
और नीचे मैं देखता हूं तो यहाँ पे ऑटो और मैनुअल का सिलेक्टर स्विच भी दिया हुआ है, देख रहे हो? इट इज आई एम टॉगलिंग इट। Yes, sir. सो यहाँ पे ऑटो मैनुअल हम रख सकते हैं। अब ये जो सीईपी पंप है, इसको बोलते हैं कॉन्डेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, जो हमारे टरबाइन में लगता है, ठीक है, स्टीम टरबाइन पे लगता है कॉन्डेंसेट को निकालने के लिए। अब बात ये है, ये जो पंप है, ये पंप को मैं ऑटो में डाल के छोड़ दूं तो ये पंप ऑटोमेटिक चालू होगा, ऑटोमेटिक बंद होगा, सब कुछ ठीक है। बट पकड़ लो ये ड्यूरिंग एनी अब्रप्ट सिचुएशन, कोई भी इमरजेंसी हो गया और मुझको इस सीईपी पंप को चलाना है या फिर बंद करना है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, उसको मैनुअल मोड पे लेना पड़ेगा, है ना। सो ये जो मैनुअल मोड पे लेना है, और मैनुअल मोड पे लेके मैं इसको स्टॉप कमांड दे दूं या फिर स्टार्ट कमांड दे दूं, तो ये कौन दे रहा है? ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, पीएलसी के ऊपर अपना कमांड दे रहा है, पीएलसी को अपना कमांड दे रहा है थ्रू एचएमआई या फिर स्काडा। समझ में आ रहा है? सो पीएलसी इंडिपेंडेंटली बहुत बढ़िया काम कर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब हम पीएलसी को प्रोग्राम करके छोड़ देंगे तो पीएलसी अपना काम बढ़िया से करेगा। लेकिन कुछ भी अगर एबनॉर्मल सिचुएशंस आती है, या फिर आपको नॉर्मल सिचुएशन पे भी आपका जो ऑपरेटर है उसको कुछ कमांड आपके पीएलसी को देना है, तो कैसे देगा? उसके लिए हमने क्या किया, हमने एचएमआई डिजाइन की कि ह्यूमन मशीन इंटरफेसिंग। और ह्यूमन मशीन इंटरफेसिंग का कुछ लिमिटेशंस है। उसका जो डिस्प्ले साइज होता है वो डिस्प्ले साइज छोटा होता है। छोटा सा डिस्प्ले पे आपको 3 या 4 कमांड का लाइन इस टाइप से दिखाई देगा। कुछ बड़े बड़े एचएमआई आते हैं पैनल व्यू, जिसमें आपका जैसे आप ये देखे हो ना, एटीएम मशीन में जब हम एंटर करते हैं, एटीएम में एंटर करते हैं ना, तो या फिर आप अगर देखोगे वॉशिंग मशीन वगैरह है तो छोटा छोटा डिस्प्ले रहता है उसमें, जिसके थ्रू हम लोग कमांड दे सकते हैं। टच स्क्रीन भी रहता है, तो एचएमआई टच स्क्रीन भी हो सकता है। यहाँ पे बटन्स लगे होंगे और बटन के पकड़ लो आपका 6 बटन्स दिया हुआ है, तो आप 6 ही कमांड उस पर एंटर कर सकते हो 1 by 1। अभी क्या है, आप मल्टीपल कमांड के लिए एक ही बटन से आपको बहुत सारा क्लिक करना पड़ेगा, तो इस टाइप से होता है एचएमआई, है ना। सिमिलरली आपका पैनल व्यू 1200, तो एलन ब्रेडली का बड़ा बड़ा एचएमआई भी आता है, बिगर साइज एचएमआई। बट जो चीज लिमिट करती है एचएमआई को, वो है कि आप उसमें जब कमांड देना चाहते हो ना, तो कंप्यूटर में क्या है, मैं एक साथ मल्टीपल चीजें एक साथ में देख पा रहा हूँ, एक ही साथ में हैंडल कर पा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, पेज पे डिस्प्ले का लिमिटेशंस हो जाता है। इसीलिए एचएमआई आप देखोगे मेनली आपका एफएमसीजी कंपनीज जो होता है, या फिर जब बैच प्रोसेसिंग होता है ना, बैचिंग होता है, बैचिंग मतलब पकड़ लो कोई प्रोडक्शन प्लांट है और वहां पे कुछ एक बैच का प्रोडक्शन निकल रहा है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी प्रोडक्शन हो सकता है, तो वहां पे आपको ये एचएमआई देखने को मिलेगा। अब जो लार्ज प्रोसेस इंडस्ट्रीज होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इंडस्ट्रीज होते हैं, लाइकवाइज और पावर प्लांट वगैरह, है ना। सो पावर प्लांट में आप एचएमआई से काम नहीं चला सकते हो, वहां पे आपको एक स्काडा लगाना है, क्योंकि वहां पे ऑपरेटर ना एक साथ ये सारे पैरामीटर जो आपके सामने है, कितने सारे पैरामीटर उसको देखने हैं, और फिर बहुत सारे पंप्स को इमरजेंसी में एक ही साथ विद इन ए सेकेंड बहुत सारे पंप्स को उसको ऑन करना है, ऑफ करना है। हाँ, उसको और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है, जैसे अलार्म क्या आ रहा है नेक्स्ट, पिछले 1 घंटे में क्या हुआ, इस टाइप का डाटा उसको चाहिए, अलार्म हिस्ट्री चाहिए। तो ये सारी चीजें जो होती है इजीली आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, आप इस पे काम कर सकते हो, किसके थ्रू, स्काडा के थ्रू। तो स्काडा इज व्हाट, स्काडा क्या है, स्काडा इज नथिंग बट ए सॉफ्टवेयर। स्काडा कोई हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, स्काडा है आपका सॉफ्टवेयर। ये स्काडा जो सॉफ्टवेयर है उसको हम क्या करते हैं, अपने कोई भी आप
पीसी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, उसमें क्या करते हो आप लोग इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर इस पीसी को या आपका डेस्कटॉप को इसको हम क्या करते हैं पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करा देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या करेगा, स्काडा क्या करेगा, इस कंप्यूटर में थ्रू टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल ये सारे डाटा पीएलसी से लेगा और साइमल्टेनियसली वो पीएलसी को कुछ डाटा फेच भी करेगा। सो ये बन गया मेरा एक नेटवर्क जहाँ पे स्काडा के साथ पीएलसी कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो व्हाट इट इज डूइंग बेसिकली, स्काडा हमको पूरा का पूरा सिस्टम को मॉनिटर करने में मदद कर रहा है। सारे पैरामीटर्स आपको इंजीनियरिंग वैल्यूज पे दिख रहे हैं, ऑल पैरामीटर्स आर इन इंजीनियरिंग वैल्यूज। तो आपको आपका फर्नेस टेम्परेचर इट इज एट 884 डिग्री सेंटीग्रेड, सुपर हीटर आउटलेट टेम्परेचर 464 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ और एज पर माई प्रोसेस रिक्वायरमेंट आई कैन गिव एनी कमांड टू एनीथिंग। सपोज मुझको पीएससी बंद करना है तो क्लोज कमांड दे दिया, यहाँ से ओपन कमांड दिया, क्लोज कमांड दिया। आई एम हैविंग दैट ऑल फैसिलिटीज। और जब भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे अलार्म भी आ रहा है कि ये कमांड दिया हुआ है और वो अलार्म स्टोर भी हो जाएगा यहाँ पे, इस जगह पे जाके स्टोर हो जाएगा कि कब किसने क्या किया, वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारा चीज करता है। आप यहाँ से ट्रिप सेट पॉइंट है, अलार्म सेट पॉइंट है, वो सारे सेट पॉइंट्स वगैरह चेंज कर सकते हो, है ना। सो स्काडा आपको बेटर फैसिलिटी देता है। और क्या देता है स्काडा कि आप किसी भी पैरामीटर का हिस्ट्री चेक कर सकते हो ग्राफिकली। जैसे मैं अगर किसी भी पैरामीटर पे क्लिक करता हूँ तो देखो उसका एक ग्राफ निकल के आ जाता है। अब मैं यहाँ से एनालिसिस कर सकता हूँ कि भाई मेरा 10 बजे क्या पैरामीटर रहा है, 12 बजे क्या रहा है। पकड़ लो आपका प्लांट ट्रिप कर गया, मशीन बंद हो गया, तो मशीन बंद हो गया तो क्यों बंद हो गया, उसको एनालिसिस करना जरूरी है ताकि फर्दर इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो एनालिसिस करने के लिए आपका स्काडा इज बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जो डाटा को स्टोर करके रखता है, एक्विजिशन करके रखता है, स्टोर करके रखता है, अलार्म देता है आपको। और यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो। एक साथ देखो मेरे पास 8 ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगर में जाता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एक साथ में 7 पैरामीटर को क्या कर सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि 12 17 2022 और 2022 आवर्स पे, है ना, क्या क्या रहा है। पकड़ लो आपका फ्लू गैस टेम्परेचर कितना रहा है, एयर हीटर आउटलेट टेम्परेचर कितना रहा है, इकोनोमाइजर का टेम्परेचर कितना रहा है, वो सारा आप देख सकते हो। इवन यू कैन चेंज द पैरामीटर्स कि आपको अगर पकड़ लो यहाँ पे नहीं, मेरे को ये वाला पैरामीटर नहीं चाहिए, आई वांट सम डिफरेंट पैरामीटर्स, तो आप यहाँ से आपका पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसके साथ आप कंपेयर करके देख सकते हो कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। आर यू गेटिंग? मैंने यहाँ पे एक पकड़ लो, हाँ, यहाँ पे देखो ये पैरामीटर चेंज हो गया और मैं यहाँ से कुछ ना कुछ डाटा देख सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो इंडस्ट्री में ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है कि मुझको हिस्ट्री पता हो। हिस्ट्री मतलब क्या है कि मेरा कल क्या डाटा रहा है, परसों क्या रहा है, या फिर एक साल पहले क्या डाटा था इस टाइम पे, या फिर कोई एक फॉल्ट आया, उस फॉल्ट पे पकड़ लो आपका टरबाइन ट्रिप हो गया है। सो आपको पता है कि लास्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ हुआ था और टरबाइन ट्रिप कर गई थी, तो क्यों ट्रिप हुई, तो लास्ट ईयर का पैरामीटर सेटिंग्स क्या था, किस वजह से हुआ, वो सारा एनालिसिस जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर इज रेस्पॉन्सिबल टू कि वो सारे पैरामीटर्स को निकाले, उसको देखे, समझे कि भाई क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और वो अपना एक बेहतरीन फीडबैक दे
अपने प्लांट हेड को या फिर अपना जो भी सीनियर है उसको कि सर ये बात हो सकती है, ताकि जो ऑपरेशन टीम है ऑपरेशन को गाइड कर सके, ताकि ऑपरेशन टीम इस पे प्रिकॉशनरी मेजर ले सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो हमारा जो काम होगा इसमें, स्काडा का जो काम हम लोगों को जानना चाहिए एज एन इंजीनियर, ऑपरेशनल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर या फिर ऑटोमेशन इंजीनियर। तो हमारा काम होता है, ये जो पेज आपके सामने दिख रहा है, लाल नील कलर के कुछ बत्ती लगे हुए हैं, जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, तो इन सबको डिजाइन करना अपना काम है। इन सबको डिजाइन करना हमारा काम होगा, इन सब के साथ कम्युनिकेट कराना हमारा काम होगा। आपने एक थर्मोकपल लगा दिया फील्ड पे, तो फील्ड पे थर्मोकपल लगा दिया, उससे काम खत्म तो हुआ नहीं। अब फील्ड से वो आएगा, उसके साथ उससे आप कुछ तार खींचोगे और फिर पैनल पे लेके आओगे। कौन से पैनल पे लेके आना है, इससे फिर पीएलसी को देंगे कि स्काडा में डायरेक्ट लगाएंगे, और फिर स्काडा में किस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे ताकि यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है ना वो एग्जैक्ट वो जगह का वैल्यू और मुझको इंजीनियरिंग यूनिट पे मिले। क्योंकि हमने बात किया था इस बारे में कि जब भी कोई एनालॉग इनपुट सिग्नल होता है, एनालॉग इनपुट सिग्नल होता है, तो वो मोस्टली आपका 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल का होता है, और जो फेच कर रहा होता है फील्ड से पीएलसी पे, है ना। अब 4 to 20 मिली एम्पियर तो करंट हो गया। अब करंट अगर आएगा तो यहाँ पे ये वैल्यूज कैसे दिखा रहा है? डेफिनेटली ये जो करंट सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जाएगा और वो डिजिटली कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये डिजिटली कन्वर्ट होगा तो आपको जो नंबर्स मिलेंगे, दोज नंबर्स विल बी इन काउंट्स। काउंट्स मतलब उसमें आपका कुछ 01 01 1 0 0 0 इस टाइप का कुछ ही नंबर रहेगा। अब ये जो काउंट है ना, वो काउंट को फिर से क्या करना पड़ेगा, उसको आप डेसिमल में आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई 0 to 10,000 काउंट पे, क्योंकि आप तो ये वाला लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे ना। सो इसको पकड़ लो, आपको 0 to 10,000 काउंट्स पे आपको दिखाना है 4 to 20 मिली एम्पियर को। और ये जो काउंट्स आएगा ना, पकड़ लो आपके पास काउंट आ रहा है 3952, इस टाइप का कुछ काउंट आया। इस काउंट के को देख के ये स्काडा या फिर पीएलसी ये डिसाइड करेगी भाई इसको दिखाना क्या है, तो वो फिर डेसिमल में दिखाएगा आपको 2.48 या फिर 35.51 9.9। तो ये देखने में काफी आसान लग रहा है कि भाई हाँ दिखा रहा है, चलो ठीक है, इट्स ओके। बट जब आप फील्ड में होगे, सो कैन यू इमेजिन कि भाई यहाँ पे इतने सारे पैरामीटर्स है ना, इतने सारे पैरामीटर से कौन सा तार कहाँ पे लगा होगा, किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग किए होंगे, कैसे इसको डिजाइन किया गया होगा, ताकि इसमें एक्यूरेट वैल्यू उसी का दिखा रहा है जो भी हमको चाहिए, और रियल टाइम वैल्यूज है कंटिन्यूअसली दिखा रहा है। यहाँ पे कोई भी वेरिएशन हो रहा है कंटिन्यूअसली दिखा रहा है, विद इन सेकेंड यहाँ पे वेरी होता जा रहा है ना। साइमल्टेनियसली हमको थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि पैरामीटर देखने का तो समझ गए कि कौन सा सिग्नल होगा, एनालॉग इनपुट होगा, है ना। अभी पकड़ लो आपने देखा कि आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, योर मेन स्ट्रीम टेम्परेचर से, योर मेन स्ट्रीम मेन स्ट्रीम टेम्परेचर, हाँ मेन स्ट्रीम प्रेशर से 66.1 से ज्यादा हो रहा है कुछ भी। या फिर पकड़ लो मैं बॉयलर पे अगर चला जाता हूँ, यहाँ से मैं बॉयलर पे चला जाता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरा ड्राम लेवल जो है वो ड्राम लेवल यहाँ पे राइट साइड पे देखो, एवरेज ड्राम लेवल दिखा रहा है, ड्राम लेवल लेफ्ट हैंड साइड दिखा रहा है, राइट हैंड साइड दिखा रहा है। तो ये जो ड्राम लेवल है ना, इसको रहना चाहिए 50% पे, लेकिन ये पकड़ लो आपका 60% जा रहा है, 65% जा रहा है, तो ये ऊपर चढ़ रहा है। या फिर ऑटो में इसको मेंटेन होना था, पकड़ लो 45 या 40% पे, ये एक बार 55% जा रहा है, फिर नीचे जाके 40 पे जा रहा है, फिर ये 55 पे जा रहा है, 40 पे जा रहा है, इस टाइप से कुछ ऑसिलेट कर रहा है। सो आपको क्या करना है अभी,
आपको डेफिनेटली ऑटो में तो काम नहीं बन रहा है भाई, तो मेरे को कमांड अपने से देना पड़ेगा। तो पकड़ लो आपका ड्राम लेवल कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ये यहाँ पे एफसीबी लगा हुआ है, कंट्रोल वाल्व, एफसीबी, फीड कंट्रोल वाल्व। तो आपने कंट्रोल वाल्व पे जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने क्या आ गया, एक पॉपअप आ गया। अभी इस पॉपअप पे देखो, यहाँ पे हमको 3 एलिमेंट PID1, 3 एलिमेंट PID2, सिंगल एलिमेंट, इस टाइप से बहुत सारा क्या क्या चीजें लिखा हुआ है। और यहाँ पे फिर सिंगल एंड 3 ये सारा मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, है ना, चेंजेस कर सकता हूँ यहाँ से। और उसके बेसिस पे हम ड्राम लेवल कंट्रोल होगा, नो डाउट। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर मेरे को अपने से मैन्युअली अगर इसको कंट्रोल करना है थ्रू PLC, कमांड मेरा मैनुअल रहेगा, तो यहाँ पे मैं इसको सिंगल एलिमेंट चाहिए, पकड़ लो इसको सिंगल में ले लिया, ये रहा मेरा सिंगल एलिमेंट FCB। अब PLC को ओपन कराना है, पकड़ लो आपका 50% ओपन है, 75% करना है। तो यहाँ पे MNOP मतलब मैनुअल आउटपुट, वहां पे जाऊंगा, 75 एंटर किया, और एंटर जैसे ही मैंने कर दिया यहाँ पे 75, ये मेरा कंट्रोल वाल्व जो है उसको 75% तक खोल देगा। तो इस तरीके से हम लोग स्काडा की मदद से PLC को कमांड दे सकते हैं, जो भी हमको डिजायर्ड है, जो भी हमको चाहिए, उसका एक कमांड हम लोग PLC को दे सकते हैं कि भाई ऐसा काम करो, वैसा मत करो, उसको गाइड कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं। और इसीलिए इस PLC को हम इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, कि हम लोग डाटा रिसीव भी कर रहे हैं, डाटा को एक्विजिशन कर रहे हैं। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, रिसीव करना होता है। तो सारे डाटा फील्ड से आ रहे हैं, फील्ड में डाटा जा रहे हैं, और कमांड भी जा रहा है, कमांड हम लोग दे रहे हैं, दे भी पा रहे हैं थ्रू PLC, टू PLC। और ये सारा चीजों को फैसिलिटेट जो कर रहा है वो कौन है, दैट इज योर SCADA, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। एक आइडिया मिला कि क्या क्या कर सकते हैं SCADA से, है ना, SCADA क्या होता है और SCADA से क्या कर सकते हैं। एम आई क्लियर? हाँ सर। ओके। सो अभी हम धीरे धीरे देखेंगे कि ये जो पैरामीटर्स है, इन पैरामीटर्स को हम लोगों को कैसे डिजाइन करना होता है, और हमारा और क्या क्या रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगा। ये जो सॉफ्टवेयर मेरे पास है, मैं आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर दे दूंगा। ओके, आप लोग अपने PC में इसको इंस्टॉल करोगे, कैसे इंस्टॉल करना है वो भी दिखा दूंगा। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। मैं आपको मेरा बनाया हुआ प्रोग्राम, ये जो भी आपके सामने है अभी, ये मेरा ही बनाया हुआ है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मर्जी से, अपने मन से कुछ भी बना दिया है। ऑल द पैरामीटर्स जो आपके सामने नजर आ रही है, वो सारे पैरामीटर्स हमारे खुद के पावर प्लांट से लिए हुए हैं, ठीक है। सो पावर प्लांट का रियल टाइम डाटा है, ये रियल टाइम प्रोग्रामिंग में दे रहा हूं आपको, कि एक थर्मल पावर प्लांट का पूरा लॉजिक वो आपको मैं दूंगा। आप उसको एनालिसिस कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो कि किस टाइप से एक पावर प्लांट काम करता है। और जो ऑपरेटर्स होते हैं कंट्रोल रूम में बैठते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, DCS इंजीनियर्स होते हैं, वो बैठ के क्या करते हैं और क्या क्या देखते हैं, वो भी मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पे बॉयलर ऑपरेटर जो भी होगा, आपको पता होगा आई होप, कि एक पावर प्लांट जो होता है, थर्मल पावर प्लांट, और जिसमें बॉयलर है, टरबाइन है और जनरेटर है, इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारा इंटरलॉकिंग है, बहुत सारा इंटरलॉकिंग है। सो FMCG प्लांट्स में उतना ज्यादा आपको इंटरलॉकिंग नहीं मिलेगा। FMCGs में क्या होता है कि एक एक मशीन इंडिपेंडेंट मशीन्स होते हैं, कुछ कोलैबोरेटेड होते हैं, बट मोस्टली आपके एक एक यूनिट, छोटा छोटा यूनिट होता है, और हर एक यूनिट क्या होता है, इंडिपेंडेंट चलने वाला होता है। तो इसको एक दूसरे के साथ लिंक करना बेवकूफ़ी होगा,
इसलिए बेवकूफी होगा कि भाई जो इंडिपेंडेंटली चल रहा है, तो अगर लिंक कर दिए और फिर एक मशीन खराब हुआ, एक पीएलसी खराब हुआ, उसके वजह से आपको प्रोसेस में हैम्पर हो रहा है, तो मतलब नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब बॉयलर टरबाइन चलाते हैं तो इसको लिंक करना जरूरी है कि बॉयलर के साथ टरबाइन का रिलेशन है, टरबाइन के साथ जनरेटर का रिलेशन है। ठीक है, एक से दूसरा चीज इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है हर चीज। बॉयलर क्या करेगी, बॉयलर स्टीम बनाएगी, वो स्टीम जाएगा किस में, टरबाइन में जाएगा, तो स्टीम का प्रेशर जरूरी है, स्टीम का टेम्परेचर जरूरी है। टरबाइन क्या करेगा, आपका जनरेटर को घुमाएगा, तो जनरेटर में लोड कितना लगा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोड जैसे जैसे बढ़ेगा स्टीम का कंजम्पशन बढ़ेगा, स्टीम का कंजम्पशन बढ़ेगा तो बॉयलर का फीडिंग आपको बढ़ाना पड़ेगा। सो हर एक चीज ना यहाँ पे आपको आंखों के सामने दिखना चाहिए, तब जाके आप कंट्रोल कर सकते हो। और आप सोच लो एज एन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, आप सोच लो कि आप फील्ड पे हो और इतने सारे पैरामीटर्स, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके सामने लगे हुए हैं, और आपका ऑपरेटर कहीं से अचानक से चिल्लाता है कि भाई मेरा पीए 1 नंबर फैन जो है वो बंद हो गया है, वो चल नहीं रहा है। एंड आप वहीं पे खड़े हो, कंट्रोल रूम में हो या फिर फील्ड में हो, यू आर इन द शिफ्ट, और आपको बोल रहा है कि भाई मेरा पीए फैन चल नहीं रहा है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है और आपको उसको ठीक करके देना है, चलाना है तुरंत। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है अब रिपोर्ट कर दिया है ना, हम ठीक कर देंगे, 1 घंटा बाद कर देंगे, 2 घंटा बाद कर देंगे, खाना खा के आके कर देंगे, वो सब नहीं चलेगा वहां पे। कि पीएफएन नहीं चल रहा है मतलब अभी करना है, वो बात का बात ही नहीं, क्योंकि अगर नहीं चलेगा तो मेरा पूरा प्लांट, पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, तो सिस्टम बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन का लॉस हो जाएगा, इतना सारा इक्विपमेंट्स फिर से चलाना पड़ेगा, ये बहुत बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज हो जाता है इसमें। तो पावर प्लांट का जो मेंटेनेंस टीम होता है, मेनली इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और ये दोनों इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ये मतलब वार फूट पे रहता है। नॉर्मली बीएसएफ जैसा काम करता है ना, वो आर्मी वाला जो बॉर्डर पे रहता है, उसी टाइप से। होने को कुछ होने वाला है नहीं, चल रहा है तो चलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पे बंदूक लेके बस आपको तान के, बंदूक तान के ही बैठना है। आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे गए, उसी वक्त हो सकता है कि आप पे फायर हो जाए। तो हम लोग जो पावर प्लांट इंजीनियर्स होते हैं वो दिन भर में कुछ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वगैरह है तो कर लिए, थोड़ा बहुत काम होगा तो कर लिए, बाकी घूमते रहो। लेकिन जब जैसे ही आप प्लांट से निकलने जाओगे उसी वक्त अलार्म बजेगा और आपको दौड़ना पड़ेगा और जाके उसी जगह को पकड़ के ठीक करना पड़ेगा इमीडिएटली। और अगर उसको इमरजेंसी बेसिस पे ठीक करना है तो आप समझ सकते हो कि आपको हर एक पॉइंट का नॉलेज होना पड़ेगा, आपको पूरा एंटायर लॉजिक आपके दिमाग पे रहना पड़ेगा, आपको पैनल का एक बहुत अच्छा आइडिया होना पड़ेगा कि कौन से पैनल पे कहाँ कहाँ पे कौन सा केबल आके लगा हुआ है, कि मॉड्यूल्स कहाँ कहाँ पे है, कौन से टीबी में क्या लगा हुआ है, उसका एक आइडिया करते करते बनता है। लेकिन वो होना जरूरी है, नहीं तो आप इमीडिएटली ढूंढ के आपको नहीं मिलेगा चीजें। दूसरा, आपको एंटायर फील्ड का एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये जो पैरामीटर है वो कहाँ से आ रहा है, वहां पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उस इंस्ट्रूमेंट का रेंज क्या है, यहाँ पे जो पैरामीटर अभी गड़बड़ हो रहा है ना उसका सेट पॉइंट क्या है, उसका रेंज क्या है, वो किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, वो सारा आइडिया आपके दिमाग पे होना चाहिए, तब जाके आप बढ़िया से काम कर सकते हो, अदरवाइज फंस जाओगे जाके। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर। सो इंस्ट्रूमेंटेशन का काम काफी इतना आसान नहीं है। इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो चीज है ना, आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए होती है, और ये कोई एक ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांच का अगर आपको नॉलेज है तो आपका काम चल जाएगा, नहीं। आपको इलेक्ट्रिकल का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको मैकेनिकल का नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रोसेस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। जो भी प्रोसेस पे काम कर रहे हो, जहां पे भी जिस फील्ड पे काम कर रहे हो, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री है, चाहे वो पेपर मिल है,
चाहे वो पावर प्लांट है, चाहे वो ऑयल एंड गैस है, कोई रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल्स है, जहां पे भी काम कर रहे हो, उसका प्रोसेस का कंप्लीट नॉलेज, प्रोसेस का कंप्लीट नॉलेज जितना ऑपरेशन वाले को पता नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा आपके पास होना चाहिए वो पर्टिकुलर नॉलेज प्रोसेस का। आप हर बार जाके प्रोसेस ऑपरेटर जो है उससे पूछ के आप काम नहीं कर सकते हो। आपको ऑपरेटर को बताना पड़ेगा कि भाई तू ऐसा कर रहा है, ये गलत कर रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, नहीं तो आप घूमते रह जाओगे फील्ड पे। ऑपरेटर आपको सही ढंग से कुछ बता नहीं पाएगा। उसको क्या आता है, वो बैठेगा, वो क्लिक किया, चल रहा था, अभी बंद हो गया, वो उससे ज्यादा कुछ बताएगा भी नहीं आपको कि भाई मेरा मोटर नहीं चल रहा है। कब तक चल रहा था? अरे कल शाम तक तो ठीक था, मैं अपने हाथों से बंद करके गया, अभी आके चला रहा हूं, अभी नहीं चल रहा है। अभी ये आपकी जिम्मेदारी है, आप नहीं बोल सकते ऐसे कैसे हो सकता है भाई, कल रात शाम को चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है। आप, ये जिम्मेदारी आपकी है कि कल शाम से लेके अभी तक के बीच पे क्या हो गया होगा कि ये मोटर नहीं चल रहा है। क्या ये मैकेनिकल फेलियर है, क्या ये इलेक्ट्रिकल फेलियर है, क्या ये इंस्ट्रूमेंटेशन का फेलियर है, क्या ये ऑटोमेशन का फेलियर है? तो ये बहुत सारे चीजें हैं, निकालना आप ही को है। आप किसी पे ब्लेम नहीं डाल सकते हो, नहीं ये मेरा नहीं है, उसका काम था। और सबसे दिक्कत वाली बात ये होती है कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन ये इन जनरल नॉर्मली लोगों को समझ में नहीं आती है। आप अगर सही भी बोल रहे होगे तब भी आपका मैनेजमेंट आपको समझेगा ही नहीं। उसको लगेगा नहीं यार ये तेरे को नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, आप नहीं कर पा रहे हो। और मोस्टली इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अगर दो डिपार्टमेंट है फील्ड में, क्या होता है कहीं कहीं पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और कहीं पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अलग होगा और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्शन अलग होगा। जहां पे ज्यादा काम होता है वहां पे कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एक अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं। जहां पे थोड़ा बहुत काम है और इलेक्ट्रिकल ही मेंटेन कर पाएगा, वहां पे इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन को कंबाइन कर देते हैं एंड E&I सेक्शन हो जाता है। तो अगर E&I है तब तो दिक्कत नहीं है, कौन किस पे ब्लेम डालेगा। लेकिन अगर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल है ना, तो आपका रोज का झगड़ा है ये। इलेक्ट्रिकल वाला बोलेगा कि आपका नहीं, ऑटोमेशन साइड से प्रॉब्लम है, हमारे इधर सारा ठीक है। और आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं यार, यहाँ पे तो दिख रहा है इतना सारा चीज और मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि फॉल्ट को पकड़े कैसे। तो ये बात को एकदम जहन में डाल लेना कि ट्रबल शूटिंग इज नॉट ए बिग डील। ट्रबल शूटिंग कभी भी एक बिग डील नहीं होता है, वो आसानी से कर सकते हैं। आप देखोगे कि भाई क्या हो गया था, नहीं एक तार लूज हो गया था, एक कुछ डस्ट गिर गया था, डस्ट को क्लीन कर दिए, प्रोसेस चलने लगा। हाँ, इस टाइप का होता है, वाइब्रेशन से हिल गया इसलिए बंद हो गया। कोई इंस्ट्रूमेंट एक तो कैलिब्रेशन आउट हो गया या फिर खराब हो गया, बदल दिया, ठीक हो गया। कोई कांटेक्ट ले नहीं रहा था इसलिए नहीं चल रहा था। तो ट्रबल शूटिंग उस लेवल का है कि वो एक छोटा सा कांटेक्ट है, उसको चेंज कर दिया, हो गया। एक फ्यूज ब्लोन ऑफ हो गया, फ्यूज को रिप्लेस कर दिया, ठीक हो गया प्रोसेस। ट्रबल शूटिंग बड़ा नहीं होता है। लेकिन कौन सा फ्यूज को चेंज करना है, कहां पे जाके टाइट करना है, कौन सा स्क्रू को पकड़ना है, दैट रियली ए स्किल जॉब। ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुंध जाके आप एक दार से सबको टाइट करेंगे, कहीं ना कहीं पे तो लग जाएगा। ऐसे थोड़े ही ना चला सकते हैं प्लांट को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि फील्ड में हम लोग घूमते हैं और गए और जाके चलो ठीक है, इसको इसमें मल्टीमीटर लगाए, यहाँ पे थोड़ा टाइट किया, वहां पे मल्टीमीटर लगाया, वहां पे टाइट किया और हो गया, प्लांट चल गया। नहीं, तुक्केबाजी पे प्लांट नहीं चलता है। हाँ, कभी कभार काम बन जाता है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपना करियर ही निकाल देते हैं इस टाइप का। बट ऐसे आप हमेशा जो आपका सॉल्व हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। आपको एक बेटर आइडिया होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाना है आपको। उसका एक बेहतरीन आइडिया अगर नहीं होगा ना, तो फॉल्ट आपके हाथ में आने वाला है नहीं।
आप एक पॉइंट को स्किप कर गए, मिस कर गए, तो आप घूमते रह जाओगे कि यार कैसे नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, सारा चीज तो मैं सही कर रहा हूं लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर नॉर्मल जो ट्रेंड है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स का, वो ट्रेंड है कि सारा का सारा दोष ना कंट्रोलर पे डाल दो। ये पीएलसी ही खराब है, ये इसको बदल दो, ये कार्ड खराब है, कार्ड को बदल दो, इसमें प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो गया है, नया प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो ये सारे बहानेबाजी होती है नॉर्मली। मतलब नॉर्मली बोलने से मैं 90%, 95% या फिर 98% केसेस बोलूंगा जहां पे सारे के सारे फील्ड रिलेटेड प्रॉब्लम फील्ड में ही मिलेंगे आपको। पीएलसी का प्रोग्रामिंग, स्काडा का प्रोग्रामिंग अपने आप कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। पीएलसी खुद से माल फंक्शनिंग नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। वो उतना रेस्ट एश्योर्ड, यू शुड बी रेस्ट एश्योर्ड कि नहीं भाई मेरा पीएलसी गड़बड़ नहीं कर रहा है, मुझको समझने में कहीं पे गड़बड़ हो रहा है। दूसरा, जब कभी भी फॉल्ट मिले ना तो पीएलसी के अंदर फॉल्ट बहुत रेयर केस में आता है। सारे के 98% फॉल्ट्स आपको पीएलसी से बाहर टर्मिनेशन कार्ड से लेकर फील्ड पे मिलेंगे। और अगर सही ढंग से अगर उसको प्रोग्रामिंग किया गया तो पीएलसी के अंदर कभी कोई फॉल्ट आएगा नहीं। हाँ, हार्डवेयर इश्यूज पुराना होता है, हार्डवेयर इश्यूज आता है, या फिर अगर कुछ हार्डवेयर इश्यूज आते हैं तो मोस्टली आपके आते हैं पीएलसी में, वो होते हैं कुछ एक वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से, अगर आपका प्रॉपर अर्थिंग नहीं है, तो ये सारे कारण होते हैं। हाई वोल्टेज आ गया है, वो सारे कारण हो सकते हैं कि आपका कार्ड जल गया, कुछ हो गया, दैट इज देयर कि आपने 24 वोल्ट के लाइन पे आपने एसी सप्लाई दे दिया, कार्ड जला दिया आपने, तो उस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। नॉर्मली ब्रांडेड पीएलसी पे जाओगे, एलन ब्रेडली, सीमेंस, हनीवेल, योकोगावा, इस टाइप का पीएलसीज होगा। आप आंख बंद करके ना 20, 25, 30 साल सो सकते हो कि हमने लगा दिया तो ये चलेगा, उसमें दिक्कत आने वाला नहीं है इतना आसानी से। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो नॉर्मली जो ट्रेंड होता है ना कि फील्ड पे गए और पीएलसी को ब्लेम किया हमेशा, तो वो ट्रेंड नहीं होना चाहिए। पीएलसी माल फंक्शनिंग बहुत रेयर केस में करेगी, आपका कुछ गड़बड़ रहा होगा इसलिए करेगी, अदरवाइज पीएलसी स्काडा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अब हमको ये सीखना है, देखो तरीका क्या होना चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को लेंगे, उसको फील्ड पे इंस्टॉल करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट से कोई ना कोई केबल निकल रहा होगा, उस केबल को लाके हम लोग अपने कार्ड पे लगाएंगे, मार्शलिंग कैबिनेट पे लगाएंगे, वहां से मॉड्यूल का कनेक्शन वगैरह पीएलसी का अंदर का पार्ट होता है वो तो हो गया। फिर हम पीएलसी में प्रोग्रामिंग करेंगे, उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वो होगा, लॉजिक होगा, और फिर उसी पॉइंट को स्काडा के साथ कनेक्शन देना है। कंप्यूटर पे इस टाइप का एक तो पेज को डिजाइन करना है और एक बटन बना के उसमें वो वाला पैरामीटर को डालना है। तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सारा चीज हम दिखाएंगे आपको। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सुमित, यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर, थोड़ा तो। ओके, तो अभी शुरू करते हैं मेन लेक्चर जो स्काडा है। और यहाँ पे इतने सारे जो पैरामीटर्स वगैरह दिख रहे हैं, तो ये मेरे पास एक स्काडा है जिसका नाम है ऑनस्पेक। आप लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देख रहे हो ऑनस्पेक प्रोफेशनल 2015, और कुछ ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बॉयलर। सो ये ऑनस्पेक एक स्काडा है, और इसमें हमने ये सारा प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो इसको शुरुआत से एक बार चालू करते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको चालू करना है वगैरह वगैरह।
सो यहाँ पे देखो मैं ऑनस्पेक सर्च किया, ये रहा मेरा ऑनस्पेक। जैसे मैंने ऑनस्पेक के क्लिक किया ये वाला खुल रहा है। ऑनस्पेक खुल रहा है। तो चला मैं रहा था। तो दिस इज ऑनस्पेक स्काडा। अब वो कोई भी स्काडा हो, उसमें जो पैरामीटर्स दिख रहे हैं उसको बनाने का तरीका क्या है, उस चीज को समझते हैं पहले, है ना। आज हम लोग सिर्फ देखते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। तो कोई भी स्काडा हो सकता है, वो चाहे सिंप्लिसिटी है, वो चाहे आपका ऑन स्पेक है, या ऑन टच है, कोई भी है। तो उसमें ना एक पेज रहेगा जहां पे जाके आप इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हमारे ऑन स्पेक में क्या है, यहाँ पे ऊपर में देखो कॉन्फ़िगर है और उसके बगल में एक रन बोल के एक बटन होगा। रन में जाएंगे और रन से हम लोग जाएंगे ऑन बिल्ड में। ऑन बिल्ड जो है वहां से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे पेज को ना एडिट कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने ऑन बिल्ड पे क्लिक किया, ये ऑन बिल्ड का एडिट पेज को गया। अब यहां से मैं, अब देख रहे हो अभी पैरामीटर नहीं दिख रहा है। अभी क्या दिख रहा है, सब नाम तो ठीक ही दिख रहा है, लेकिन हर एक पैरामीटर पे ना कुछ परसेंटेज सिंबल आ रहा है। जहां जहां पे पैरामीटर दिख रहा था पहले, वहां पे सारा परसेंटेज दिख रहा है। और इस परसेंटेज का ही खेला है। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, उसका, उसमें जो भी पैरामीटर हमको चाहिए उसका टैग वैल्यू एंटर करना है। सो हर एक जगह पे आपको दिखेगा कि जितने भी एनालॉग इनपुट है वहां पे कोई ना कोई टैग डाला हुआ है। सिमिलरली ये तो पैरामीटर देखने का है। जब मैं स्टार्ट करता हूँ किसी भी एक मोटर को, फैन को, तो यहाँ पे ना मेरे को उसका कलर दिखता है। तो यहाँ पे भी कुछ टैग डालते हैं। क्या टैग होता है, कैसा होता है, उसमें आएंगे बाद में। और वो कौन सा कलर है, हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं कि स्टॉप हो गया तो ऑफ हो गया तो रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए। अब स्टार्ट होगा, ऑन होगा तो क्या चाहिए, रेड चाहिए कि ग्रीन चाहिए, उस हिसाब से करते हैं। नॉर्मली हम लोग स्टार्ट को ग्रीन रखते हैं और स्टॉप में क्या करते हैं, रेड करते हैं, ताकि लाल वाला जो कलर है ना वो आंखों में लगता है ना। तो जो जो बंद है वो तुरंत आपके आंखों में लग जाएगा। अच्छा ये मेरा फिट पंप बंद हो गया, FD1 चल रहा है, FD2 भी चल रहा है, PA2 बंद है। तो वो सारा चीज हम लोग देख सकते हैं इजीली। साइमल्टेनियसली यहाँ पे कुछ फीडबैक नोटेशंस, ये पॉपअप कैसे खुलता है वो भी देखेंगे कि क्लिक करने से ये जो पॉपअप खुल के आ गया मेरे सामने कि PFN1 कैसे आ रहा है भाई, ये पॉपअप कैसे आएगा, उस चीज को देखेंगे। यहाँ पे स्टार्ट कमांड देने से, जैसे ही मैं स्टार्ट देता हूँ और ये रनिंग में आ जाता है, स्टार्ट होता है, तो किस हिसाब से यहाँ पे स्टार्ट देने से मेरा PLC में वो कमांड जा रहा है और लॉजिक में जाके क्या और किस ढंग से वो हैम्पर कर रहा है, वो चीज को हम लोग बढ़िया से देखेंगे, है ना। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिसदेव दिखाया था, याद है। हाँ सर। सिसदेव, सिसदेव कहाँ गया भाई, एक मिनट रुक जाओ। सिसदेव DCS का। DCS का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। सो इसमें जैसे मैं अगर लॉजिक को खोलता हूँ, तो तो यहाँ से जो कोई भी अगर मैं लॉजिक यहाँ पे खोलता हूँ ना, देखो ये देखो स्टॉप कौन सा है, IDFN2 कमांड। तो स्टॉप कमांड IDFN2, और वो कहाँ से आ रहा है एक्चुअली, ये स्टॉप कमांड कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये मेरा स्काडा से आ रहा है, यहाँ से।
यहाँ पे इसका टैग देख लो, 303B stop_01 दिख रहा है, 303B stop_01, ये टैग है। कौन सा टैग? स्टॉप IDFN2 कमांड का टैग है, और वही टैग आपको यहाँ पे दिखेगा। IDFN2 का स्टॉप कहाँ है भाई? ये रहा मेरा IDFN2, और ये IDFN2 का स्टॉप यहाँ पे देखो क्या है, स्टॉप 303B_01, स्टॉप 303B_01। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? तो इस टाइप से हम टैग से लिंक करेंगे PLC के साथ और SCADA को, ठीक है। हाँ, आप लोगों को ये जो सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल कर लेना है पहले, और ऑन स्पेक का सॉफ्टवेयर मैं आज दे दूंगा, आप लोग इससे डाउनलोड कर लेना, मैं एक लिंक दे दूंगा, ठीक है। और इसको पहले आप लोग इंस्टॉल कर लो, फिर कल हम लोग इसको किस तरीके से ये करना है वो सारा चीज देखेंगे। समझ में आ रहा है? SCADA को इंस्टॉल कर लेना आज। मैं अभी लिंक क्लास के बाद मैं लिंक दे दूंगा इसमें टेलीग्राम चैनल पे, है ना? क्लियर? ठीक है सर। इसको पहले सर इंस्टॉल वो करो। DCS का सॉफ्टवेयर भी वो वाला हाँ कुछ अलग होगा क्या? हाँ, उसका सिस्टम का सॉफ्टवेयर होगा, वो भी दे दूंगा, ठीक है। मैं एक फोल्डर दे दूंगा, उसको ये करके रख लेना। और क्या कहते हैं इसको, सिस्टम को आप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस क्या करना होगा उसको। ओके सर। अभी दिखा देता हूँ कि आपको क्या करना है, मैं फोल्डर दोनों ही दे दूंगा। अरे यार क्या हो गया? आपको बस मैं दो फोल्डर दूंगा, ये सिस्टम 3200E न्यू बोल के एक फोल्डर आएगा, ठीक है। और एक आएगा आपका प्रोजेक्ट 3200E। क्लियर? ये दो फोल्डर रहेंगे, एक सिस्टम 3200E न्यू, एक आएगा प्रोजेक्ट 3200E। ये दोनों फोल्डर को बस आपको कॉपी करके ना C ड्राइव पे रख देना है, कॉपी पेस्ट। क्लियर? ओके सर। ओके सर। ये दोनों को आपको कॉपी पेस्ट करना है, और कुछ नहीं करना है, इससे काम बन जाएगा आपका। और जो SCADA है ऑन स्पेक, इसको इंस्टॉल करेंगे, और इसको ऑन स्पेक, हाँ, इसको आप नॉर्मली आपको जो सॉफ्टवेयर का जो फाइल दूंगा उसी पे सेटअप रहेगा, वहां से जाके आप इसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंस्टॉल करने के बाद का काम जो है वो मैं कल दिखाऊंगा, ठीक है। एक बार इंस्टॉल कर लो पहले, उसके बाद मैं आपको कल गाइड कर दूंगा कि किस क्या क्या करना है, उसमें सेटिंग कैसे करना है, और जो फोल्डर्स मैं दूंगा एक्स्ट्रा एडिशनल उसको कैसे रखना है। क्योंकि जब आप ऑनस्पेक को चालू करोगे, कहाँ गया पे, जब चालू करोगे तो ये डायरेक्टली ये वाला पेज नहीं खुलेगा जो अभी हमारा खुला है ना, कुछ डेमो पेज खुलेगा मैंने कहा था। तो हो जाएगा भाई, बंद हो जाना। हम्म। इसका एक डेमो पेज खुलेगा।
इसमें सिर्फ क्या करना होगा आपको, इंस्टॉल होने के बाद सी ड्राइव पे जाना, दिख रहा है सी ड्राइव? हाँ सर। तो सी ड्राइव पे जाना है, ऑनस्पेक लिखा हुआ फोल्डर आएगा, वो ऑनस्पेक के क्लिक करो तो इस टाइप से कुछ फोल्डर्स देखेंगे, DLL, हिस्ट्री, लॉग्स, ऑनस्पेक। ऑनस्पेक के अंदर एक ऑनस्पेक दिखेगा एंड उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे प्रिंट एंड वर्क। सो ये वर्क फोल्डर जो होगा वो हमारा मेन फोल्डर होगा, जहाँ से सारा जो पेजेस है ना वो प्रोजेक्ट होगा आपका। तो वर्क फोल्डर को खोलेंगे और एक्स्ट्रा एक फोल्डर मिलेगा ऑन्टो मॉड बोल के, ठीक है, ONTO, जो हमारा बनाया हुआ प्रोग्राम है वो आपको मैं दे दूंगा। ये ऑन्टो मॉड फोल्डर अलग से रहेगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जब होगा, वर्क फोल्डर खोलोगे तो ये नहीं दिखेगा आपको। तो आपको बस वो ऑन्टो मॉड वाला फोल्डर को कॉपी करके आपको इस वर्क फोल्डर के अंदर यहाँ पे पेस्ट करना होगा। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप इस पे डबल क्लिक करो तो ये खुल जाएगा ये फोल्डर। इसके अंदर कोई भी फाइल के साथ छेड़खानी नहीं करना है, जैसा है रहने दे, ठीक है। इसको ये इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, एड्रेस बार पे जाके इस पूरे एड्रेस को कॉपी कर लेना है। एड्रेस को कॉपी करके हम निकल जाएंगे और फिर से ऑनस्पेक जो सी ड्राइव है उसका ऑनस्पेक के अंदर का जो ऑनस्पेक वाला फोल्डर है ना उस पे जाएंगे। पहले क्या किया, वर्क फोल्डर पे गए, अपना ऑन्टो मोड को सिलेक्ट किए और उसका पूरा एड्रेस बार को कॉपी किए और फिर हम लोग कहाँ पे आएंगे, ऑनस्पेक के अंदर ऑनस्पेक पे आएंगे। यहाँ पे आके आपका यहाँ पे एक सेट DEF, ये देखो सेट DEF बोल के एक सेट डिफॉल्ट का फाइल बना हुआ है, इस पे डबल क्लिक करो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेट डिफॉल्ट्स। डिफॉल्ट पाथ आप यहाँ पे से सेट करोगे कि यहाँ पे देखो मेरा कौन सा पाथ दिया हुआ है, डिफॉल्ट वर्किंग पाथ C ऑनस्पेक वर्क ऑन्टो मॉड। इसीलिए यहाँ से ये क्या कर रहा है, जब भी मैं क्लिक करता हूँ शॉर्टकट पे तो ये ऑन्टो मॉड को ही खोल रहा है, ठीक है। मैं देता हूँ Ctrl+V, पकड़ लो, मैंने यहाँ से अगर इसको चेंज कर दिया हो, मैं वर्क में जाता हूँ, मैं डेमो को सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर मैं क्विक स्टार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको Ctrl+C, यहाँ से निकल जाते हैं, आते हैं ऑनस्पेक पे, सेट डिफॉल्ट, यहाँ पे गए, इसको पूरा सिलेक्ट किया और Ctrl+V, ये मेरा क्विक स्टार्ट हो गया। देखो वर्क फोल्डर का जो पाथ है ना वो पाथ अभी चेंज हो गया, डबल हो गया, ये तो ये पाथ अभी चेंज हो गया। सेट कर दे, सेट। अब जब मैं ऑनस्पेक को खोलूंगा ना, ऑनस्पेक 3.2, तो देखो कुछ भी नहीं आया, कोई प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं आया, सिर्फ ऐसा एक ब्लैंक पेज आ गया, है ना, ब्लैंक पेज आ गया पूरा। तो आपको ऐसा ब्लैंक पेज मिलेगा। इस पे कैसे आप कमांड लिख सकते हो वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, कि कोई भी एक नया अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें किस तरीके से हम लोगों को एंटर करना है आपका सिम्बॉल्स वगैरह। और उससे बेटर रहता है जब आपका बना बनाया एक प्रोग्राम पूरा का पूरा आपके सामने है और आपको मिल रहा है यहाँ से, तो आप एनालिसिस कर सकते हो कि भाई हाँ क्या क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। सो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा स्काडा का। धीरे धीरे उसको पूरा पक्का करेंगे। प्लीज शेयर द टेलीग्राम चैनल। खालिद, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे ऐप पे ही मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे ऑन्टोजेनेसिस, ONTOGENESIS, ऑन्टोजेनेसिस। अदरवाइज मैं आज व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा उसका लिंक, है ना, वहां से मिल जाएगा। ओके, क्लियर। Yes, sir. इसका डिफॉल्ट को मैं फिर से चेंज करता हूँ, देखो किस तरीके से करेंगे डिफॉल्ट। अभी देखो मैं ऑनस्पेक अगर खोलना चाहता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। बंद हो गया, अरे यार, हाँ बंद हो गया।
बंद हो गया। अभी अगर मैं उस पर खोलता हूँ डायरेक्टली तो क्या आ रहा है? इसको मिल ही नहीं रहा पाथ। टू लोकेट द फाइल योरसेल्फ, उसको पाथ ही नहीं मिल रहा है अभी। समझ में आया? डिफॉल्ट चेंज कर दिए, कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया, तो ये सारी दिक्कतें आएंगी, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। कई बार ऐसे होते हैं, कुछ पाथ लोकेट हो गया। ओके खलीद, बाय बाय। और मैं अभी ये कर देता हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देता हूँ व्हाट्सएप पे, और ये सारे सॉफ्टवेयर को का लिंक बना के दे देता हूँ आप लोगों को। ओके, चलो आज के लिए Okay, यहाँ sir. करता हूँ। Thank you, sir. ठीक है सुमित, Yes, sir. चलो आप अपना पुराना जो वीडियोस है उसका लेक्चर 1 से एक बार क्लियर करो, है ना? थोड़ा हाँ, टाइम sir. मिल जाएगा, फिर बात करेंगे। ओके चलो बाय। Okay, sir. Thank you, sir.